See, there's a problem in the network of college, so I'm presenting the my screen through mobile phone. So if my voice is not audible while in between the lecture, kindly don't write on the chat box because I'm not able to see the chat box, because my whole concentration is on the in slide. So whenever you find my voice is not audible, just kindly unmute yourself and tell. Okay. Are you at slide? Are you able to see the slide? Okay. Are you able to see the slide? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Okay. Yesterday I have taken one example. I have taken one example on distance vector routing. Okay. So this diagram I've taken and I asked you to solve this diagram. Okay, and I have explained you the procedure of why to so can anybody explain me? Can anybody tell me what is the um, final result of each router? What is the routing table of each router? Because there are and I have asked you for how many updations is required. Can anybody tell me कितने updations जरूरत है यहाँ पे? How many updations we can do? कितने बार अपडेट कर सकते हो आप राउटर का राउटिंग each राउटर का राउटिंग टेबल? Can anybody tell me? Can me? There again explain. Many routers, 4 routers are there. ठीक है? So how many updations you can make? N minus 1. क्या बता रही हूँ? N minus 1. N क्या हो गया? Number of routers present in. How many routers are there in the diagram? There are 4 routers are there. So 4 minus 1, 3 means what? You can update 5. ठीक है? कितने बार अपडेट कर सकते हो? 3 बार हम अपडेट कर सकते हैं. Clear? Now, if you see the diagram of it, so there in the diagram of it there are 4 routers and each are linked with a solid line, and in that solid line the distance between each router, one router to other router, this distance is written in between that. Clear? So how to solve it? Have you drawn this diagram yesterday? Have you drawn this diagram yesterday? Yes or no? बोलिए मुझसे, मुझे आई एम नॉट एबल टू सी योर चैट बॉक्स. Have you drawn this diagram? Have you drawn this diagram? Yes or no? Yes or no? Are you able to listen to me? Are you able to listen to me? Yes or no? Are you able to listen to me? So what I say just now, don't write here. बोलिए, because I'm not able to see your chat box. Because I'm totally concentrate on the that slide. Okay. So what I have explained to you, in the diagram.
तो अगर आपने ड्रॉ किया है तो दिस इज योर, सबसे पहला क्या था, पहला स्टेप इज टू ड्रॉ टेबल, ठीक है। तो टेबल पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि पैकेट का डेस्टिनेशन क्या है, दैट इज द फर्स्ट कॉलम, कि पैकेट का डेस्टिनेशन क्या है। सेकंड कॉलम क्या होता है कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सोर्स एंड डेस्टिनेशन जहाँ पे जा रहे हो, व्हाट इज द सोर्स एंड व्हाट विल बी द डेस्टिनेशन, उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इट। तो इसकी सेकंड कॉलम क्या हो गया, कॉस्ट। एंड थर्ड हो गया कि डेस्टिनेशन होता है कि उसका नेक्स्ट क्या था, लोड क्या था, नेक्स्ट राउटर क्या था, क्लियर। तो दिस इज बाय यूजिंग दिस थ्री थिंग्स वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ टेबल, ठीक है। तो सबसे पहला अपडेशन क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट अपडेशन। तो पहला अपडेशन क्या होते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इन द केस ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग डीवीआर मेथड पे, वी द राउटर शेयर इट्स राउटिंग टेबल टू इट्स लोकल नेबर। तो लोकल नेबर मतलब क्या है, विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद दी, इज डायरेक्टली कनेक्टेड, कनेक्टेड हम उसको क्या बोलते हैं, लोकल नाइबर, ठीक है। तो लोकल नाइबर को वो अपना राउटिंग टेबल शेयर करता है, क्लियर। सो हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड कि वो राउटिंग टेबल पे कैसे आपको कैलकुलेट करना है। तो टेक एन एग्जाम्पल कि आप एक टेबल देखिए, एक राउटिंग टेबल पे क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा कि यहाँ पे ABCD लिखा, ठीक है। तो उसका कॉस्ट क्या है, अभी ए से ए तक अगर आपको एक पैकेट ए को ही भेजना है तो उसका कॉस्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो उससे ज्यादा कम कॉस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 0 लिख रहे हैं। उसका नेक्स्ट किसको भेजा उसने, तो उसका नेक्स्ट कौन था, ए ही था, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिखा, क्लियर। अब ए को बी को भेजना है, ठीक है, ए जो बी को भेजना है, पैकेट बी को भेजने वाला है। तो ए से बी का डिस्टेंस क्या है, 2 है। तो ए ने जो बी को भेजा है उसके बीच में कोई राउटर था नहीं, नेक्स्ट नोड क्या था उसका, बी ही था। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, नेक्स्ट बी, क्लियर। अब डेस्टिनेशन कहाँ पे भेजना है, ए को भेजना है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, डेस्टिनेशन। एंड व्हाट इज वेदर इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ए, नो इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद ए, दैट्स व्हाई ए इज नॉट श्योर अबाउट द कॉस्ट ऑफ इट, ठीक है। तुमने क्या लिखा है यहाँ पे, इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है, क्लियर, कुछ भी हो सकता है। तो अगर उसको कॉस्ट पता तो इसके थ्रू जाना है, व्हाट विल, बिकॉज टू रीच टू दी सी देयर आर मल्टीपल रूट्स देयर, ठीक है। तो व्हाट विल बी योर नेक्स्ट नोड, इट इज नॉट श्योर बाय द सी, so that's why यहाँ पे जो क्या क्या किया है, what is the next destination D, no? So to reach to the D, when A wants to follow the D, is the cost of it, because it's directly connected D to cost of it, it is a 1, clear। तो उसने क्या लिखा, 1 लिखा। एंड एक ए ने किसको भेजा, डी को भेजा, कनेक्टेड ए, दैट मींस व्हाट, कोड क्या क्या और ए किसका, ए राउटर का, क्लियर। तो नेक्स्ट का राउटिंग टेबल क्या है, सेम ईयर हम लोग, ये बी क्या है, हम लोग यहाँ पे डेस्टिनेशन चल रहे हैं क्योंकि बी भी 4 डेस्टिनेशन को भेजेगा। अब बी टू ए का 2, ठीक है। तो नेक्स्ट नोड बी का, नेक्स्ट नोड ए, तो ए को अब बी को भेजना है तो उसका कॉस्ट है 0। तो उसका नेक्स्ट इज अ बी, तो वो नेक्स्ट नोड पे क्या लिखेगा, नेक्स्ट के कॉलम पे क्या लिखेगा, बी डायरेक्ट, तो उसने को बी और फिर एक्स्ट्रा राउटर नहीं है, हेलो मैम। करेगा। हेलो मैडम, योर वॉइस इज ब्रेकिंग मैम। माय वॉइस इज ब्रेकिंग। यस। Yeah, okay. Now let's see the routing table of C. Routing table of C कहाँ पे है, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, अपर लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, ठीक है, सॉरी राइट मोस्ट कॉर्नर। C का कहाँ पे है, अपर राइट मोस्ट कॉर्नर।
तो वहां पे अगर आप देख रहे हो देयर ऑल्सो मेक द टेबल इज हैविंग द थ्री थिंग्स, डेस्टिनेशन, कॉस्ट, कहाँ तक कौन सा डेस्टिनेशन को भेज रहा है, कॉस्ट एंड नेक्स्ट राउटर, ठीक है। अब अगर आप सी अगर ए को ट्रांसमिट करेगा, ये ऑल्सो सी इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ए, बिकॉज ए तक जाने के लिए उसके पास दो ही रूट है, दैट इज सी डी ए और CBA, ठीक है। बट एज इट इज, बिकॉज पहले बार वो क्या करेगा, पहले वो अपने नाइबरिंग नोड्स के साथ अपना डिस्टेंस शेयर करता है, तो वही डिस्टेंस वो यहाँ पे कैलकुलेट करेगा। जो सबसे पहले जो अपडेशन होता है दैट इज द फर्स्ट अपडेशन वी आर डिस्कसिंग नाउ, ठीक है। तो सी से डायरेक्टली ए तक जाना कैसा है, दैट इज सी इज डोंट नो अबाउट इट एंड व्हाट विल बी द व्हिच रूट दे आर इट इज गोइंग टू चूज, इट इज आल्सो नॉट नोन बाय सी, दैट्स वाई उसने सी ने क्या, सी से ए का डिस्टेंस उसको नहीं पता, तो उसने क्या किया, डायरेक्टली इन्फिनिटी लिखा, ठीक है। अब उसके बाद इन्फिनिटी लिखा तो उसको ये तक नहीं पता कि कौन सा रूट उसको चूज करना है, तो रूट अगर नहीं पता तो उसको ये भी नहीं पता होगा कि नेक्स्ट राउट कौन सा आने वाला है। उसने क्या लिखा, यहाँ पे डैश किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, सी टू बी तक जाना है, उसको कहाँ जाना है, सी से बी तक जाना है, तो सी से बी तक जाने के लिए उसके पास डायरेक्ट रूट है, तो उसका कॉस्ट कितना है, एंड नेक्स्ट उसका सी ने किसको ट्रांसमिट किया, डायरेक्टली को, तो उसने नेक्स्ट क्या आया, बी, ठीक है। अब सी ने सी का तो आएगा 0 एंड नेक्स्ट इज सी को डी तक भेजना है, तो सी से डी तक भेजने के लिए डायरेक्ट रूट है, यस देयर इज अ डायरेक्ट, तो व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ दिस इज 11, बिकॉज 11 बिटवीन द सी टू डी, क्या हो गया, डी, ये हो गया आपका सी का राउटिंग टेबल। क्या है, दिस इज सिमिलर लाइक योर बी ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे डी हर एक राउटर के साथ उसका कनेक्शन है, तो यहाँ पे अगर आप देख लो कॉस्ट की जगह पे कहीं पर भी इंफिनिटी नहीं है, वाई, बिकॉज डी इज कनेक्टेड विथ अदर 3 राउटर्स, क्लियर। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग पे, कि अगर ए को अगर अपना शेयर करना है, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि डीवीआर मेथड पे कि वो क्या करता है कि अपना राउटिंग टेबल डी एंड बी को शेयर करता है, बिकॉज दिस टू आर डायरेक्टली लोकल नाइबर्स, दिस इज द डायरेक्टली, और आप बोल सकते हो कि इज द इमीडिएट राउटर ऑफ योर ए राउटर, क्लियर। अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट, कल ही मैंने बताया था व्हाट इज द पर्पस कि ए क्यों शेयर करता है, B, D, A, C, why they share their routing table with their immediate routers? Can anybody explain me? वो अपना राउटिंग टेबल क्यों शेयर करता है? कैन एनीबडी एक्सप्लेन मी? कैन एनीबडी एक्सप्लेन? वो अपना राउटिंग टेबल, एवरी राउटर, व्हाई दे शेयर देयर राउटिंग टेबल टू देयर नियरेस्ट नाइबर्स? The purpose behind it, just take an example here, कि just see here कि to reach to the destination, for example A is the source, C is the destination, clear? A को C तक भेजना, पैकेट भेजना है, ठीक है, and it is not directly connected, that means what, A को नहीं पता C तक पहुंचना कैसा है, C तक हम कैसे पहुंचेंगे A को नहीं पता, ठीक है। जब B एंड D ने अपना शेयर किया राउटिंग टेबल विथ A, बिकॉज A इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ B एंड D, जब B एंड D ने A के साथ अपना राउटिंग टेबल शेयर किया, तो व्हाट विल हैपन, इसको A को पता चला कि C तक जाने का एक तरीका है, either through B or through D, that is why the routing table is shared with each every nearest neighbor, so that जिसके साथ कोई भी जो भी राउटर जिसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, they can find the solution to reach to the destination, जो वो डायरेक्टली पहुंच नहीं सकता, क्लियर। एनी क्वेरी, यस और नो बोल के बोलिए, डोंट राइट इन द चैट बॉक्स, यस और नो, एनी क्वेरी, don't write in the chat box because I'm not able to see your chat box. No doubt नहीं है, no doubt, okay, see we to the अभी पहला किसी का उसको किसी डिस्टेंस उसको पता है, किसी नोड को राउटर को किसी को नहीं पता, ठीक है। स्टेप होता है, स्टेप 2 पे क्या होता है कि हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो अपडेशन कैसे होता है, तो
अपडेट करेंगे, ठीक है। तो इस सबसे पहले हमारे पास जो नेटवर्क है वो फिक्स्ड है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास राउटर क्या है, का राउटर टेबल अपडेट करेंगे। और कितने बार आप अपडेट कर सकते हो, 3 बार। हाउ n-1 टाइम्स। कैसे, n इज द हाउ मेनी राउटर्स आर देयर, 4 राउटर्स आर देयर, 4 - 1 इक्वल टू 3। दैट मीन्स 3 टाइम्स you can update your each and every router. Clear? Whoever present in the, whoever involved in the communication. Clear? Now सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, राउटर ए का देखेंगे, ठीक है। राउटर ए का, तो राउटर ए का अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ए का जो नियरेस्ट 2 राउटर्स है, नियरेस्ट 2 कौन सा है जो डायरेक्टली पहुंच सकता है, ए, बी एंड डी। हम क्या करेंगे, बी एंड डी का जो कॉस्ट था, अपने बी एंड डी का जो कॉस्ट डिसाइड किया था, अगर आप देख रहे हो लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट कॉर्नर पे, मिडिल लोअर राइट मोस्ट कॉर्नर पे आपका अगर देख रहे हो, बी का कॉस्ट दिया हुआ है कितना, 2037, और डी का क्या है, 17110। ये दोनों का हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। और हमें लोग उसके नीचे, जस्ट उस कॉलम के नीचे हम लिखेंगे कि ए से बी का डायरेक्ट कनेक्शन का जो कॉस्ट वो कितना है, 2 है, और ए टू डी का कितना है, 1 है, ठीक है। और सामने में, उसी के सामने में हम लोगों ने एक राउटिंग टेबल बनाया है। उस राउटिंग टेबल पे हम लोग अभी अपडेशन डालेंगे, ठीक है। पहले कितना था ए का, 0 to ∞1। अभी ये अपडेट होने वाला है। कैसे अपडेट होगा, तो सबसे सिंपलेस्ट वे टू फाइंड आउट कैसा है, मैंने आपको सोल्यूशन दिया था। ओरली ये मैन्युअली करने से बेटर है, यू कैन डू इन दिस वे। ए, अभी हम एक एक करके देखेंगे। ए टू ए तक जाने का सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 0 ही है, इससे छोटा कॉस्ट नहीं हो सकता। तो डायरेक्टली ए से ए का जाने का जो कॉस्ट था 0, उतना ही रखो। बी से बी का जाने का 0 ही हो सकता है, सी से सी का जाने का 0 ही हो सकता है, इससे लोएस्ट नहीं हो सकता आपका डिस्टेंस, ठीक है, कॉस्ट। नाउ अभी कैसा है, अभी ए से बी तक जाना है, तो ए से बी का जाने का आपके पास डायरेक्ट रूट 2 है, तो 2 + 0 आपका, अगर फ्रॉम बी का जो कॉलम देख रहे हो उसका सेकंड रो अगर आप देख रहे हो, सेकंड रो पे कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो ए टू बी का डिस्टेंस कितना है, 2, 2 + 0 2। अब ए से बी तक जाने का और एक तरीका हो सकता है, पहले डी उसके बीच में आ सकता है, ए टू डी, डी टू बी। तो ए टू डी का डिस्टेंस कितना है, 1, 1 + 7 8, तो विच इज द स्मॉलर 1 2। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, 2। तो आप लोगों ने कौन सा रूट चूज किया, ए टू बी का चूज किया। तो नेक्स्ट ए का नेक्स्ट नोड क्या हुआ, राउटर क्या हुआ, नेक्स्ट नोड, दैट इज बी। तो नेक्स्ट के जगह पे क्या आया, बी, ठीक है। अब हमारा डेस्टिनेशन क्या है, सी। अभी ए से सी तक जाना है हमें, तो ए से सी तक जाने के लिए क्या है, सबसे पहले ए 2 + 3 5, 1 + 11 12, विच इज द स्मॉलर 1 5। तो अभी क्या है, सी तक जाने के लिए हम लोगों ने कौन सा रूट चूज किया, ए टू बी, बी टू सी, ए टू बी, बी टू सी, ठीक है। तो ए के नेक्स्ट नोड, इमीडिएट नेक्स्ट नोड कौन सा, राउटर कौन सा था, इट इज बी। तो हम लोगों ने नेक्स्ट पे क्या लिखा, बी। अब नाउ आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज डी, ठीक है। अब कैसा है, अभी इसका कैलकुलेट करते हैं, 2 + 7 इज 9, ठीक है। अब और 1 + 0 इज 1, विच इज स्मॉलर 1 1। तो विच रूट यू हैव चूजन, ए टू डी का, जो डायरेक्टली क्या है, आप यहाँ पे 1 लिखिए, और ए ने कौन सा पाथ चूज किया है, ए टू डी का। तो ए का नेक्स्ट नोड क्या था, डी, तो राइट इट डाउन डी। सो इन दिस वे योर फर्स्ट सेकेंड अपडेशन ओवर। यहाँ पे क्या हुआ आपका, अभी सेकेंड अपडेशन ओवर हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका अपडेटेड राउटिंग टेबल ऑफ योर राउटर ए। क्लियर। तो जिन लोगों ने नोट डाउन नहीं किया था, नोट डाउन इट। एग्जाम for solving the distance vector routing by using this distance vector routing algorithm, आप solve कीजिए बोल के। अगर नहीं आया तो you have to, because distance vector routing बोलिए, shortest path routing बोलिए, everything without an example you are not able to explain. You cannot put your points nicely. So explanation should be through your example, through one example, ठीक है। तो do one thing, you draw this, write it down, note down the example, don't write anything, बस draw कीजिए। एंड अगर आपको लगे को इतना जरूरत है कि कैसे करके कैलकुलेशन हुआ है, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो।
Yesterday I have explained. I thought maybe I went so fast. I flew maybe the first. कल वो मैं बहुत fast था. So I have decided to explain again because many of you are not sure. I am not sure about you because only few of you have answered. Few have only responded yesterday, and because of that, I am not sure about you. Noted, everyone? Noted? मुंह से बोलिए. I am not able to see your chat box. Noted, everyone? Noted, everyone? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, I'll move to the next. अब नेक्स्ट में क्या है अभी आपका बी का है. कहाँ पे है? राउटर बी का. ठीक है. अब राउटर बी अगर आप डायग्राम देख रहे हो, राउटर बी कौन कौन से विच आर दी नियरेस्ट नोड जिसके साथ वो डायरेक्टली कनेक्टेड है? सभी से है वो. सी से भी है, डी से भी है, ए से भी है. ठीक है. तो आप क्या करोगे, जो सबसे पहला जो राउटिंग टेबल बनाया था आपने ए बी एंड सी का, उसका आप यहाँ पे पेस्ट करोगे. इसमें आपका इन्फिनिटी भी आएगा क्योंकि फर्स्ट जो राउटिंग टेबल आपने क्रिएट किया था, बहुत लोग बहुत चीज़ों पे आपका डेस्टिनेशन आपको पता नहीं था कॉस्ट, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, डायरेक्टली इन्फिनिटी. तो वो टेबल यहाँ पे आप पेस्ट करोगे. ठीक है. प्लस उस कॉलम में आप ये भी लिखोगे कि बी से ए का डिस्टेंस. आपने अगर कॉलम ए का, अगर आपने ए का पेस्ट किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप उसके नीचे आप बी से ए का डिस्टेंस भी लिखोगे. सी का अगर आप लोगों ने पेस्ट किया है तो बी से सी का डिस्टेंस आप नीचे लिखोगे. और अगर आपने डी का अगर पेस्ट किया है तो उसके नीचे क्या लिखोगे, बी से डी का, बिकॉज सोर्स इज द सेम. टू रीच टू ए सी डी, सोर्स क्या होगा, सी बी ही है. टू रीच टू ए सी एंड डी. ठीक है. तो उसका आप क्या करोगे, जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट होगा वो बी से ए तक का, बी से सी तक का और बी से डी तक का होगा. ठीक है. अभी आप देखते हैं राउटर बी का. सबसे पहला जो है टेबल, टेबल पे आप लोगों ने यहाँ पे लिखा, डेस्टिनेशन लिख के रखा आपने ए बी सी डी. ठीक है, बिकॉज हमें चारों तक पहुंचना है. तो बी से एक तक पहुंचने के लिए आपके पास क्या क्या है देखते हैं. तो हम लोग अभी आप कैलकुलेट करेंगे. 2 + 0 2. 3 plus infinity, it may be the more than your 2, it may be the less than your 2. तो हमें नहीं पता तो हम उसको ज़्यादा ही पकड़ेंगे. ठीक है. प्लस 7 + 1 = 8, विच इज द स्मॉलर वन, हम पकड़ेंगे 2, बिकॉज इन्फिनिटी का हमको वैल्यू नहीं पता. तो स्मॉलर कौन सा आया, 2. तो अभी बी से आपने ए को ट्रांसमिट किया तो नेक्स्ट नोड ए ही था, तो आप नेक्स्ट में ए ही लिखोगे. ठीक है. अब बी से बी तक का जाना है तो स्मॉलर 0 ही होता है कॉस्ट, बिकॉज ए बी को ही भेज रहा है तो कॉस्ट का मतलब ही नहीं है. तो उसमें डायरेक्टली आप क्या करो, 0 डालिए और बी लिखिएगा. ठीक है. बी से अभी सी तक जाना है, बी से सी तक जाना है तो क्या करना है, 2 + इन्फिनिटी, आई डोंट नो, 3 + 0 3, 7 + 11 18. तो हम क्या पकड़ के चलेंगे, 3 is the lower one. तो नेक्स्ट नोट क्या था, हम आप लोगों ने कौन सा रूट लिया, बी टू सी का. तो बी टू सी का डायरेक्टली बी के बाद नेक्स्ट नोट क्या आया, सी आया. तो अब क्या लिखोगे नेक्स्ट पे, सी. अब हमें क्या पहुंचना है, डी तक पहुंचना है. ठीक है. तो डी तक पहुंचने के लिए अभी आप प्लस कीजिए. 2 + 1 3, 3 + 11 14 एंड 7 + 0 7, विच इज स्मॉलर वन 3. तो आपने कौन सा रूट लिया, बी टू ए का. तो बी टू ए एंड ए टू डी, दिस इज द रूट. कौन सा रूट है, बी टू ए एंड ए टू डी. तो बी टू ए का आपने पहले कैलकुलेट किया, कितना है 2. 2 + 1, 1 क्या का था, ए टू डी का डिस्टेंस. तो कितना हुआ, 3. ठीक है. आपने यहाँ पे 3 लिखा. अब बी से अगर आपको डी तक जाना था तो बी का नियरेस्ट क्या था, अभी इज द ए. क्या था, ए था. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, ए. डू वन थिंग, नोट डाउन, नोट इट डाउन. Noted, everyone?
Shall I move to the next slide? Yes, ma'am. Shall I move to the next slide? Okay. बहुत जल्दी जा रहे हो, बहुत लोगों ने क्या है लिखा है क्या नहीं पता नहीं. सी और नेक्स्ट राउटर इज सी. ठीक है. अब सी तक डायरेक्टली पहुंचने के लिए बी एंड डी है बिकॉज ए इज नॉट कनेक्टेड विथ सी. ठीक है. करोगे बी एंड डी का लिखोगे यहाँ पे और सी टू बी का डिस्टेंस आप बिकॉज बी के नीचे आप बी के राउटिंग टेबल के नीचे आप क्या लिखोगे सी से बी का डिस्टेंस जो है 3 एंड डी के राउटिंग टेबल के नीचे आप लिखोगे सी से डी का डिस्टेंस 11. तो उसका भी सिमिलर वे हम लोगों ने यहाँ पे राउटिंग टेबल अपडेटेड राउटिंग टेबल राउटर सी का हम लोगों ने कैलकुलेट किया है. तो कैसे किया है, सी से ए तक का जाने का डिस्टेंस क्या हुआ 3 + 2 5 11 + 1 12 which is the smaller one path that is the 5. तो 5 लिखोगे. अब C से A तक जाने के लिए उसका नेक्स्ट नोड क्या था, पहले C से B गए जिसका 3 था, फिर B से A गए तो क्या हुआ 2. तो C का नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर क्या था, B था. तो अब क्या लिखोगे नेक्स्ट B. ठीक है. अब C से B तक जाना है. ठीक है. C से B तक जाना है 3 + 0 3 11 + 7 is 18. ठीक है. तो C से B का डायरेक्टली जो पाथ था उसका वही हम लोग चूज कर रहे हैं विच इज वही सबसे स्मॉलर शॉर्टेस्ट पाथ है. तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया 3 लिखा और अपने नेक्स्ट नोड क्या था B ही था. ठीक है. अब C से C तक ही जाना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 0 एंड नेक्स्ट नोड इज C. अब C से D तक जाना है तो क्या करोगे 7 + 3 is 11 and 11 + 0 is 7 + 3 is 10 and 11 + 0 is 11 + 0 is 11. ठीक है. विच इज द शॉर्टर वन, इट इज दी 10. ठीक है. अभी आप देखिए यहाँ पे आपने जो 10 लिखा तो यहाँ पे कैसा आया यहाँ पे कि आपका आपने यहाँ पे 10 लिखा और राउटिंग टेबल पे कौन सा रूट आपने नेटवर्क पे कौन सा रूट आपने चूज किया सी बी एंड डी. सी का नियरेस्ट नोड क्या था आपका, राउटर क्या था, बी था. तो आप यहाँ पे नेक्स्ट में क्या लिखोगे, ड्रॉ इट. Don't wait for me कि मैं explain करूँ and at the end you will write it down. हो सके तो आप calculate करते रहिए parallelly. At least क्या होता है कि आप बाद में tally कर सकते हैं कि whatever you have solved before my explanation whether you are confident with it or not. तो आप बस tally कर लीजिए कि आंसर करेक्ट आए कि नहीं आए तो you can correct it. बिकॉज क्या है खुद को कॉन्फिडेंट रहना जरूरी है, कॉन्फिडेंस जरूरी है कि ओके आई एम कॉन्फिडेंट विद दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके आई विल मूव टू द नेक्स्ट. तो ये हो गया डी हम लोगों ने भी. तो ये हो गया ए बी डी का सेकेंड स्टेप पे आपने जो अपडेशन किया है. ठीक है. अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, बिकॉज हम लोग 3 बार अपडेशन करेंगे. ठीक है. 3 बार. तो दिस इज योर थर्ड टाइम हम अपडेट कर रहे. तो अपडेशन के लिए तो कहाँ से होगा फिर से अपडेशन, राउटर ए से होगा. अब राउटर ए का हम लोग फिर से क्या करेंगे, बी एंड डी जो नियरेस्ट नेबर है उसका हम राउटिंग टेबल यहाँ पे लिखेंगे. अभी आप मुझे बताओ आप ये बी एंड डी का जो राउटिंग टेबल है ये कौन सा राउटिंग टेबल है, पहले वाला था या स्टेप 2 से जो मिला वो है, ये पहले वाला है या जो स्टेप 2 से हमें मिला है वो है, इट इज फ्रॉम स्टेप 2. ठीक है. तो राउटिंग टेबल आप जो फॉलो करोगे for updating your updating each and every router, it should be from your सबसे उससे पहले जो आपने अपडेट किया था ना कि जो सबसे पहले किया था. तो आप क्या करोगे स्टेप 2 का राउटिंग टेबल यहाँ पे डालोगे आप, ना कि स्टेप 1 का. ठीक है. अब स्टेप 4 पे जब अगर इसका 4 स्टेप पे अगर होता अपडेशन तो 4 नंबर स्टेप के लिए आप स्टेप नंबर 3 का राउटिंग टेबल यूज करते हैं. ठीक है. So here also the procedure are same. Here also the procedure are same. तो थर्ड तक आप कॉन्फिडेंट होते हो कि ओके कि whatever the A, B, C and D का जो भी राउटिंग टेबल इंडिविजुअली आया, it is nothing but your the updated राउटिंग टेबल, इससे आगे और अपडेट नहीं हो सकता. एंड वॉट एवर द डिस्टेंस यू हैव रिटन ऑन द राउटिंग टेबल, इट इज द स्मॉलेस्ट वन डिस्टेंस. क्लियर. बिकॉज कितने बार अपडेट हो सकता है n-1 टाइम्स. तो n-1 टाइम्स में आपको शॉर्टेस्ट पाथ मिल ही जाता है. ठीक है. तो अगर आपने नोट डाउन किया होगा स्टेप 3 का राउटर ए का, इज द राउटर बी,
दिस इज राउटर सी एंड दिस इज राउटर डी। क्लियर? नाउ अभी नेक्स्ट क्या है, तो ये जो डायग्राम है ये भी बना के रखो, ये डायग्राम आपके बुक पे है, ये जो डायग्राम है ये आपके बुक का है, ये आप बना के रख दो। हो सके तो आप ये सॉल्व कीजिए, और वो जो भी राउटिंग टेबल साइड में मैंने लिखा है दैट इज द फाइनल राउटिंग टेबल। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो हाउ मेनी राउटर्स आर देयर, 5 राउटर्स आते हैं, तो कितने बार अपडेट करोगे, 5 माइनस 1, कितने बार करोगे, 5 माइनस 1 मीन्स 4 टाइम्स यू हैव टू अपडेट ईच राउटर्स। क्लियर? कितने राउटर्स है, 5 है, तो 5 राउटर रिक्वायर्स 4 अपडेशन। ठीक है, तो ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है ना, दैट इज दी अपडेटेड वन। जो भी मैंने यहाँ पे जो भी आपको टेबल दिख रही है, जो भी आपको टेबल दिख रही है दैट इज द फाइनल अपडेटेड टेबल। तो हो सके तो आप सॉल्व कीजिए, बिकॉज ये बुक पे है, अगर एग्जाम पे आता है तो मे बी दी डिस्टेंस मे गेट चेंज, वो डिस्टेंस कम कर दे या ज़्यादा कर दे, डिपेंड्स अपॉन दी एग्जामिनर। सो आप पेपर सेटर, तो आप बेटर ऑप्शन क्या है, आप ट्राई टू सॉल्व इन योर वे। ड्रॉ दिस डायग्राम। Drawn everyone? Drawn everyone? Any query? Yes or no? Speak up. Any query in distance vector routing DBR? Hello? Hello? Any query? Yes or no? मुंह खोल बेटा। यस मैम, क्या है डाउट, बोलिए। यस बोलना था, नो बोलना था, क्वेश्चन था मेरा। नो डाउट मैम। डाउट? नो डाउट मैडम, तो आंसर भी गलत बोलते हो, यस बोलना है नो बोलना है। ओके, सो तो इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है बताओ मुझे आप, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ इट? क्या डिसएडवांटेज है कि अगर फॉर एग्जांपल देयर आर 3 लिंक राउटर्स आर देयर एंड इट इज कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, अभी कैसा है कि फॉर एग्जांपल टू रीच टू सी इज योर सोर्स एंड ए तक पहुंचना है। ठीक है, एंड सी टू ए तक का डिस्टेंस अगर आपका 1 है, इज द शॉर्टेस्ट पाथ, तो अगर बिकॉज ऑफ देयर सम रीजन कि वो लिंक फेल हुआ, तो आप यहाँ पे क्या होता है कि आप इस राउटर इस नेटवर्क पे फट से आपका अपडेशन होता नहीं है। It will not stabilize the problem whatever comes. Clear? So this is known as count to infinity problem. किसको क्या बोलते हैं आप? Count to infinity problem. Clear? तो वो क्या करता है कि उसके बाद वो क्या करेगा? It is going to choose the other way to reach to the destination, that is C to B, B to A. So this is a distance vector routing. Clear? So this is all about your distance vector routing. So in next lecture, I'll stop here. In next lecture, we'll move to the next. Okay. How many of you have exam tomorrow? SCPM ka? How many of you have an exam in SCPM? SCPM का कितने लोगों का है कल? कितने लोगों को है SCPM का एग्जाम? किसी का नहीं है क्या? एग्जाम मीन्स मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट। 4 नहीं क्या 5 लोगों का है आई थिंक। किसका किसका है? समीर का है ना? समीर, हैव यू जॉइंड? समीर पठान,
ओके, आई थिंक आप जितने लोग ज्वाइन किए उन लोगों का नहीं है. ओके, डू वन थिंग, mark your attendance in the chat box till then. Okay, thank you. Digvijay, you have joined just now. कॉल आला मॅडम त्यामुळे लेफ्ट झालं. अरे दिग्विजय, तेरा एसीपीएम का सब्जेक्ट है क्या? हाँ कल है मैडम टेस्ट. हाँ तो कहाँ? तो कल मैं ग्रुप में जब पूछ रही थी तू कहाँ था? ग्रुप में देखा नहीं मैम. वेरी नाइस. देखा नहीं क्या? मैं पूछ ही बोल रही हूँ. ग्रुप मतलब ये लेक्चर के बीच पे. वही कॉल आ गया था मैडम इसलिए लेफ्ट हो गया था. तो कॉल है वो अटेंड करते बैठ तू. कल टेस्ट है मैडम. मार्क योर अटेंडेंस.